ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾ ਕੁੱਲੀ ਹਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ? ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਖੱਚ ਜਿਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਮੁਆਕਬਾ ਤੇ ਜੱਜ ਘੱਟ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਆਕਬਾ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਡਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ 2-4 ਤੇ ਤਫਸੀਲੀ ਬਰਾਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਭੋਗ ਲੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਛਟੱਲੀ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਆਪ ਅਸਰ ਹੋ ਨਿਵਾ ਰਿਹਾ ਨਿਵਾ ਹੋ ਵੇ। ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਬੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ ਵੇਖ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੁਤੱਯਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸਲ ਬੜਾ ਮਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਮੁਤੱਯਨ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਰਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਨ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਟੁਰਦਾ ਕੰਮ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਿਤਨਾ ਇਹ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਅਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਂਝ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤਨਾ ਹਸਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁল্লাਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਆਹੋ, ਆ ਕੇ ਤਬਸਰਾ ਨਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸੈਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਬਸਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤਰਜਮੇ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੈ। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि भाई कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, कि डवड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। सुन लिया, ये लिबरल वाला ड्रामा नहीं, ये पूरी गेम रचाई गई है पूरी एक प्लानिंग के तहत। वो कह रहे कादियानियों का तर्जुमे कुरान ठीक है, मुसलमानों के तर्जुमे कुरान गलत है, और मैं इस बात को तस्लीम करता ही नहीं कि तर्जुमे के अंदर, कुरान के तर्जुमे के अंदर कोई फर्क डाल ही सकता है। अब वो पहले ग्राउंड ऐसी तैयार कर दी गई है कि इन लिबरल्स के ज़हन के अंदर ये बैठा दिया है मिर्जा जूनियर जेलमी ने कि देखो जी कादियानियों का भी तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक है और तुम्हारे मौलवियों के तर्जुमा कुरान गलत है। और तर्जुमा रिकॉर्डिंग मिल सकती है? यार तू तो विच जबड़िया चुप कर जा, मैं तेरी हर जगह तू विच निनो लेना तेरा जरूरी है, चुप करके बस सुनिया कर बैठ के थल्ले। ये रिकॉर्डिंग प्लीज दे दे, एक बंदा है वो बड़ा मानता है। चल ठीक है, चुप करके सुनिया कर, बस चुप करके सुनी जाया कर, जो मैं होवां ते विच ना बोलिया कर, प्लीज दे दें ये लितर में रंग ही तेनू, मैं समझ आई कि नहीं? बंदा संभल जाएगा, एक बंदा है वो मिस गाइड हुआ है, वो इसको फॉलो करता है। मैंने ठीक है, पहले तो तू मिस गाइड है ना, ते तू मुर्गा बन जा ते फिर सही हो जाएगा। कैमरा ऑन करके मुर्गा बनी, चुप करके ब्याह कर, जो मैं हुआ उदू ना बोलिया कर, ए विच जबड़ियां शुरू कर देना। तो ये बात ये है कि ये ग्राउंड तैयार की गई है भाई, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और इनको एक लाइन में रख के लितर फेरना जरूरी है। ना फेरोगे तो जख्म जड़ा बिगड़ता जाना है, कम बिगड़ी जाना, प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, प्रोग्राम तो बढ़ जाना है। फिर ते प्रोग्राम नू वड़न तो पहले संभालना पड़ेगा। तो भाई ये सोशल मीडिया के ऊपर आके अगर फितना अंगेजियां कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर इनको लितर परेड भी जरूरी है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। हाँ, अब किसी मर्ज़ई है कोई मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोवर आए, कोई आया हमें बताए। कल ही मैंने बताया है कि मैंने चैलेंज किया है कादियानियों का ये जो तफसीर सगीर नाम का इन्होंने तर्जुमा किया है, पूरे कुरान अल-हम्द के अलीफ से लेके वन्नास की सीन तक जो इन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है, कोई एक आयत ले आओ कि जिसका तर्जुमा बिल्कुल ठीक है, आ जाओ। तो और उसको साबित भी फिर करना है तुमने, मैं जीरा करूंगा तो मुंह मांगा इनाम दूंगा भाई। मैं कहता हूं मेरा चैलेंज कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हें मुंह मांगा नाम इस चीज के ऊपर दे दूंगा कि तुम मेरे नुक्ते नजर को गलत साबित कर दो। हाँ चलो आओ कबूल करो, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा गलत है, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा इतना मशहूर तर्जुमा वो ही गलत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा गलत, रब्बिल आलमीन का तर्जुमा गलत, अर्रहमान अर्रहीम का तर्जुमा गलत, मालिकी यौमिद्दीन का तर्जुमा गलत। कहते कोई तर्जुमे के अंदर फर्क डाल ही नहीं सकता, कादियानियों का तर्जुमा ठीक है, मुसलमानों के तर्जुमे गलत है।
आओ चैलेंज कबूल करो, फिर हिम्मत करो, फिर निकलो मैदान में, आओ सामने, सामना करो ना। यबड़ियां मारने से तो कुछ नहीं बनना ना। तो ये बात है कि आके आमना सामना करते हैं, इल्मी दुनिया के अंदर निकलते हैं, सामने आके मुकाबला किया करते हैं। आज तक हमने तो नहीं कोई देखा कि कोई हमारा चैलेंज कबूल करे और सामने आके बात करे, कोई भी नहीं। ये मिर्जा जूनियर जेल में की स्टेटमेंट दोबारा सुनने जी। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, किड्डा बड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप के तर्जमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। ये बकवासियात है। डॉक्टर उलिस पीर साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या माशा मुफ्ती साहब, आप अगर बात करें, आप तर्जमे की बात कर रहे हैं, तो आप तर्जमा तो इनका गलत तो है, जाहिल तो है। आपको मैं तफसीर सगीर का ये देखें, सूरा बकरा जो है, अलिफ लाम मीम का क्या तर्जमा है मुफ्ती साहब? अलिफ लाम मीम का वैसे तफसीर सगीर के अंदर तो नहीं कोई किया, और ये मुतशाबिहात में से है, और इसका तर्जुमा कोई कर भी नहीं सकता। लो जी, आपने तफसीर सगीर पढ़ी नहीं है, मुफ्ती साहब खोलें तो सही। अच्छा जी, जी जी। कल भी मैं देख रहा था, मुझे वो कोई दोस्त कह रहा था जी इन्होंने हरूफ मुक़त्तात के तर्जुमे किए हैं। मैंने कहा यार मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं। नहीं खोलें आप, इसका सफ़ा नंबर है 5। अच्छा जी, एक मिनट जी, तफसीर सगीर आ गई है, ये ले, तो सफ़ा नंबर इसका ये आ गया जी। जी, सूरा फातिहा के आगे ये 2 3 4 और ये 5। जी बिल्कुल। हाँ जी, पढ़ें अलिफ लाम मीम का तर्जुमा। अच्छा 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 अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है, मैं अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ, ये है। नीचे कहाँ लिखा हुआ है? नीचे तो तफसीर है जी, ये तो तर्जुमा लिखा हुआ है इसका। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये यानी ऊपर की लाइन, ओए होए, मैं वो समझ रहा था ये बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है। ओए होए, ना जी, ना मैं अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ कहंदा है मुफ्ती साहब। मिर्जा कहंदा है अलिफ लाम मीम दा मतलब है अनल्लाहु आलमो। अलिफ फर अना, लाम फर अल्लाह, मीम अलिफ लाम मीम अनल्लाहु आलमो। अगर आपने देखना है तो देखें नंबर 1 की, उसमें लिखा हुआ है, तफसीर पढ़े नंबर 1 की। हाँ अच्छा 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 अच्छा, यानी वो कह रहा है कि अलिफ लाम मीम में अलिफ आना के कायम मुकाम है, लाम अल्लाह के कायम मुकाम है, मीम का मतलब है आलमू। तुसी एडा लांती बंदा देखिया कदी? ओए होए, अच्छा अच्छा, मैंने अभी गौर किया जी डॉक्टर साहब। ठीक है मुफ्ती साहब, मैंने तो ये सारी पढ़ी हुई है। मैंने तो कई 100 इसमें से ऐसी चीजें निकाल रखी हैं, मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी। आप मुझे बताएं, मैंने वो आपको सूरा आल इमरान बार बार इसलिए बताता हूं कि इसने उसका मैं बिल्कुल तहरीफ कर दी मानवी, कि इसका मतलब मुतशाबिहात का अल्लाह और रासिख इल्म वाले दोनों जानते हैं, हालांकि वहां लिखा है कि इसका मतलब सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, और जो रासिख हैं वो कहते हैं हम सब पर ईमान लाए। ये तहरीफ इसको आप कहते हैं या नहीं कहते? बिल्कुल तहरीफ है, तहरीफ मानवी है, और बहुत गुनाह की और बहुत बड़ी तारीफ और बहतान है ये। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। सिर्फ इस एक लफ्ज पर
इस मिर्ज़ाई फाइज ईसा को ऐसा फैसला नहीं लिखना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप ये अब नीचे आ जाएं, देखें एक ही सफे पर बहुत सारी तारीफें। हाँ हाँ वो पढ़े वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मुफ्ती साहब व बिल आखिरति हुम यूक़िनून का क्या मतलब है? और जो तुझ पर नाजल किया गया या जो तुझसे पहले नाजल किया गया था इस पर ईमान लाते हैं और आइंदा होने वाली मऊद बातों पर भी ये लखदील जी तर्जमा जे बिल आखिराते हुम यूक़िनून, यानी मिर्जे नु मान लो ओदियां मौत गल्लां। मुफ्ती साहब इनू तुसी तारीफ कहंदे हो या नहीं कहंदे? बिल्कुल तहरीफ है जी, बिल्कुल ही तहरीफ। मैं कहना एडी लानती तारीफ, ये तर्जमा कुरान पाक का तकसीम करने की सजा 29 298 295 लगती है कि नहीं लगती? बिल्कुल लगती है जी, बिल्कुल लगती है। ये कानून के मुताबिक जो इस पर 295 98 नहीं लगाता उससे बड़ा खबीस और गद्दार पाकिस्तान है ही नहीं। मैं तो लोगों को दिखाता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। मुफ्ती साहब ये तो पहला सफ़ा है, मैंने कल भी दिखाई थी वो तहरीफ सूरह आल इमरान में, और ऐसी बेशुमार तहरीफात हैं। वह बिल आखिराते हुम यूक़िनून का मतलब है उन आखिरत पर ईमान लाते हैं, यकीन रखते हैं। उसने क्या है बिल आखिराते हुम यूक़िन। मैं कहता हूं दुनिया का कोई अरबी, मामूली अरबी का तालिब इल्म, कोई मुफ्ती ये तर्जमा कर दे तो मुझे आके पकड़ लो। मैं कहना है ओ मिर्ज़ाई दी बजाय मैनू सजा दे देना। मुफ्ती साहब ये बताएं इन्हें, बिल्कुल इन्होंने अलफ लाम मीम दा तर्जमा कीता जे। वो कहंदा है अल्लाह ताला नू ही नहीं पता कि मुतशाबिहात की होंदे ने। मैं दसना है, मैं 10वीं ते फेल हो गया, अपनी धीयां नाल ते मैं ज़िना कर लिया, अपनी मां नाल भी भैन नाल भी ज़िना कर लिया, पर तर्जमा मैनू उत्तों इल्हाम हो रहा जे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बजा फरमाया आप। मैंने कहा कि मुफ्ती साहब आप बताएंगे तो लोग ज्यादा सुनेंगे। वो इन्हें डॉक्टर साहब पढ़ना शुरू कर दे तो यहाँ तो एक एक लफ्ज एक एक लाइन के अंदर डंडी मारी है, बंदा नहीं, किस मुफ्ती किसके ऊपर साहब पकड़े। अब देखे ना, पता है क्या डॉक्टर साहब के हम आलिम लोग हैं, हमने इल्मी तौर पे गिरफ्त करनी होती है। इसको ग्रामेटिकली देखेंगे, इसको बलागत के एतबार से देखेंगे, इसको मंतकी तौर पर देखेंगे, इसको असूल तफसीर और असूल तर्जुमा के एतबार से देखेंगे, कई एतबार से देखेंगे। ये मामला है ना जी। मुफ्ती साहब वो तो ठीक है, मतलब ग्रामर के लिहाज से जहालत की निशानी होगी। ये तो जानबूझकर गलत तर्जमा कर, जानबूझकर बिल्कुल तहरीफ करने वाली बात है ना। वो चलो ग्रामर नहीं आंदी, जाहिल दा पुत्र है, कोई गल नहीं, लेकिन ये तो वो तहरीफ है जो कुरान पाक में लिखा ही नहीं हुआ और उसने ऐड कर दिया है, यानी कुरान पाक का बिल्कुल ही तहरीफ कर दी है उसने। ये तो जुर्म है। अच्छा, बीच में जो अंडर ब्रैकेटें हैं ना, ये भी एक उसकी तहरीफ बनती है, तहरीफ मानवी, कि अपना लुकमा अंडर ब्रैकेट ला करके उसके मुंह के अंदर डालते हैं ये लोग। जैसे ये देखिए जी जी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून का वो तर्जुमा क्या कर रहा है? ऐसे लोग जिन्होंने कुफर किया है और को ये अंडर ब्रैकेट ले हैं, तेरा उनको डराना या ना डराना उनके लिए यकसां, के बाद फिर अंडर ब्रैकेट कह रहा है असर पैदा करता है। फिर अंडर ब्रैकेट जब तक वो इस हालत को ना बदले ईमान नहीं लाएंगे। मतलब अपनी बातों को अंडर ब्रैकेट ला ला के ना वो अपना लुकमा कुरान के तर्जुमे के मुंह के अंदर डाल रहे हैं। मुफ्ती साहब वो बात ठीक है, कानून ऐसे नहीं देखता इस तर्जमे को जी। जब अदालत में ये तर्जमा पेश किया जाएगा तो वो कहेगा कि हमने ये साबित करना है कि ये मानवी तर्जमा है, ये कोई तफसीर नहीं है, और ब्रैकेट इस बात का सबूत है कि ये तफसीर नहीं कर रहा, ये मानवी
तहतुल लफ्ज तर्जमा जो है वो कर रहा है, और ये हमारे हक में जाएगी बात कि उसने इसको ब्रैकेट में कर दिया। वो अलग बात है जो आप कह रहे हैं कि उसने गलत ब्रैकेट में एक और गलती, एक ब्लंडर और उसने किया है। और जब हम ये साबित कर देंगे कि ये तहतुल लफ्ज लफ्जी तर्जमा है, कोई तफसीर नहीं है, तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर ये देखा जाएगा कि इसके मानी क्या है, क्या इसके मानी ये बनते हैं। और दुनिया का कोई भी शख्स अलिफ लाम मीम का ये तर्जमा नहीं कर सकता, और दुनिया का कोई शख्स बिल आखिरात हम यूकिनून का ये तर्जमा नहीं कर सकता। फिर इसकी कानूनी हैसियत बदल जाएगी, और ये कानून के लिहाज से एक जहालत का तर्जमा करना अलग बात है। ये बाई इंटेंशन यानी जानते बूझते हुए कुरान पर इफ्तरा करने का इल्जाम लगेगा। एक और जरा चलो इसका तर्जमा कर लेते हैं। ये है वामिन अन्नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाही। आमन्ना फेल माजी का सीगा है, बाबे इफाल से फेल माजी मरूफ सीगा जमा मुतकल्लिम, हम सब ईमान लाए ज़माना माजी के अंदर, ये तर्जुमा है। अब ये तर्जुमा क्या कर रहा है? अल्लाह पर और आने वाले दिन पर ईमान रखते हैं। अब ये ईमान रखते हैं तर्जुमा करके इसने मुजारे का तर्जुमा कर दिए जी। देखें, ये गलत है, ये भी एक तहरीफ के जुमरे में आती है, लेकिन वो जो तहरीफ मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो जुर्म के जुमरे में आती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। वो जो तहरीफ मैं दिखा रहा हूं ना कि अलिफ लाम मीम का तर्जुमा किया हुआ है और हम आखिरत पर ईमान लाते, कहते हैं कि आने वाली मऊद बातों पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो बनता ही नहीं है। इसकी कानूनी हैसियत जो है ना, ये तो वहां से कदम बाहर नहीं रख सकता इस एविडेंस के बाद। और वो ये किताब तकसीम कर रहा था, और जो आप ग्रामर के लिहाज से कहते हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। जाहिलों के जाहिल है, जानबूझ के उन्होंने ये तहरीफ, और ये भी तहरीफ के जुमरे में है। मैं कहता हूं कि ये तो एक ऐसा तर्जमा कादियानी करते हैं कि जो मतलब कोई गद्दार ही छोड़ सकता है इन्हें ऐसे तर्जमे पर। अगर यही ये करते रहे तो ये तो अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। कान खोल कर सुन लो। अब ये अंडर ब्रैकेट कर करके ना वो एक तर्जुमे को अजीब सा रंग दे दिए। जी सिकंदर भाई बैठे हैं। सिकंदर भाई कुछ करें बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, वो कल मैं यही बात कर रहा था कि आप यहाँ डॉक्टर होली स्पिरिट साहब जो तफसीर सगीर के ऊपर बात कर रहे हैं ना, आप तो कर रहे हैं ग्रामर के हिसाब से, लेकिन एक बिल्कुल लेमैन जो टर्म है, बिल्कुल आम बंदा, वो भी तफसीर सगीर जब खोलेगा ना तो उसको समझ आ जाएगी कि कादियानियों ने इसमें क्या ब्लंडर मारे हुए हैं। हरूफे मुकत्तियात का तर्जुमा किसी ने किया ही नहीं सिवाय इनके, और ये सिर्फ एक अलिफ लाम तक बात नहीं ठहरती। जितने भी कुरान पाक में हरूफे मुकत्तियात हैं, मिसाल के तौर पे यासीन, अलिफ लाम रा, सारों के साथ उन्होंने ये किया हुआ है तफसीर सगीर में। और फिर अजीब बात ये है कि ब्रैकेट में भी नहीं किया हुआ, ब्रैकेट कोई नहीं लगाई हुई। अच्छा, यहाँ पर एक और फनी चीज मैं कहूँ, ये मुस्तहज़िऊन ये बाबे इस्तिफाल से है और इसमें फाइल का सीगा है जमा के लिए। इस्तहज़ा यस्तहज़िउ इस्तिहज़ान फ़हुवा मुस्तहज़िऊन। तो मुस्तहज़िऊन मुस्तहज़ी आनी मुस्तहज़िऊन ये जमा का सीगा है, तो ये तो करने वाले के तर्जुमे के अंदर आता है।
تو اب انہوں نے نا فعل ماضی کا ترجمہ اس کا کر دیا ہے کہ ہم تو صرف ان مومنوں سے ہنسی کر رہے تھے، یعنی ماضی استمراری کا ترجمہ کر دیا. یہ فنی طور پہ غلط ہے، فنی طور پہ غلط ہے. ماضی استمراری کا ترجمہ کر دیا جی. کریں بات، میں اتنی دیر مطالعہ بھی کر رہا ہوں، ساتھ کوئی چیز نظر آتی ہے تو پھر میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ نے ابھی تفسیر صغیر کھولی ہوئی ہے اپنے پاس؟ جی کھولی ہوئی ہے، میں ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کر رہا ہوں، اور کوئی چیز نظر آتی ہے تو کیونکہ یہ چیزیں مطالعہ سے تعلق رکھتی ہیں، مطالعہ کر کے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں نا، تو چلو بیٹھے بیٹھے دو چار غلطیاں موٹی موٹی جو ہے وہ سامنے آ جائیں تو بہتر ہی ہے نا. مفتی صاحب جو یہ قادیانی ہمارے ساتھ اکثر بات کرتے ہوئے آیت پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی جس میں 5 انعامات کا اچھا ذکر ہے. یہاں پر ایک اور سن لیں، اللہ یستہزئ بہم، حالانکہ یہ وہی استہزاء کا فعل مضارع ہے، اور یہ ہے کہ اللہ ان سے استہزاء کرے گا اپنی شایان شان. تو یہ مطلب انہوں نے ترجمہ کیا کر دیا، اللہ انہیں ان کی ہنسی کی سزا دے گا. اے لو پڑھ لو، ایک کتوں ترجمہ کر لینا جی، سزا دے گا. شاہ صاحب وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ قادیانیوں سے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ ہمیں ایک آیت کا ریفرنس پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 انعامات کا ذکر ہے. وہ کون سی آیت ہے ذرا یہ تفسیر صغیر میں اس کا بھی ترجمہ دیکھیں. ہاں انہوں نے ماں کا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے؟ وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے غالباً، میں دیکھتا ہوں ایک منٹ. یہ اس کا بھی ذرا ترجمہ دیکھیے گا. جی میں دیکھتا ہوں سورہ النساء، یہ 4تھی سورت ہے، 69 اور یہ قادیانیوں کی ہوگی غالباً 70 نمبر، مسلمانوں کے قرآن کی. اچھا یہ بھی ایک تحریف ہے کہ انہوں نے آیات کے نمبرنگ کو بدل دیے. مسلمانوں کے قرآن کی آیات کی نمبرنگ الگ ہے، قادیانیوں کے قرآن کی نمبرنگ الگ ہے. اچھا جی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور ان لوگوں میں شامل، یہ لے کے شامل کر دیے، ان لوگوں میں شامل ہوں گے. حالانکہ یہ شامل ہوں گے کس کا ترجمہ ہے جی؟ یہ غلط کیا ہے جی انہوں نے. یہ ادھر سے نبوت جاری کرتا. ہاں جی یہ ترجمہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. عقلی اور نقلی طور پہ دونوں اعتبار، بہر اعتبار یہ غلط ہے. اور شاہ صاحب یہ ایک اور چیز کے اوپر روشنی ڈالیں. میں جو اس آیت کا مفہوم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو انعام ملے گا نیک لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہاں پہ اس کا ذکر کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں مطلب وہ ان کے ساتھ ہوں گے نا، جو دنیا کے اندر اچھے اعمال کریں گے نا، اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، ان کو انعام جنت کے اندر یہ ملے گا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. بس یہ ہے اس کا ترجمہ. اور یہ ترجمے میں ڈنڈی مار کے اس چیز کو اس دنیا کے اندر لے آئے ہیں کہ ایتھے بھی اللہ رسول کی اطاعت کر لو، نبوت تانوں لب جانی جے. یعنی نبی بھی بن گئے تو شہید بھی وہ بن گئے تو صدیق بھی بن گئے ہیں، صالح بھی بن گئے. تو پھر تو سب سے بڑے نبی تو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی اور سارے صحابہ کرام پھر ہو گئے، کیونکہ سب سے زیادہ تو اطاعت انہوں نے کی. تو کیا وہ سارے کے سارے مسیح موعود بن گئے اور نبی بن گئے؟ پھر اولیاء اللہ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں گزرے ہیں، موجودہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوں گے، تو کیا وہ سارے کے سارے نبی بن گئے؟ جہالت کی انتہا ہے. پھر یہی چلو یہ بھی کام کر لیتے ہیں، قادیانیوں کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں. قادیانیوں بتاؤ کہ کیا تم لوگ بقول تمہارے عقیدے کے
نبی اور رسول کی اطاعت مرزا قادیانی نے کی کہ نہیں، خلیفوں نے کی کہ نہیں، تمہارے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے نبی رسول کی اطاعت کی کہ نہیں؟ تو قادیانی مانتے ہیں جی ہاں جی وہ اللہ رسول کی انہوں نے اطاعت کی، تو کیا وہ سارے کے سارے نبی تھے؟ وہ کیسے جاہل ہو تم لوگ، پاگلو، عقل نام کی، شعور نام کی چیز نہیں ہے تمہارے اندر۔ شاہ صاحب یہ بات ہوگی تو یہ بہت دور تک جائے گی اگر جی پھر ہاں، ان کو اپنے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ثابت کرنا ہے نا، تو ان کو خلافت کے ساتھ ساتھ اس کو نبوت بھی دینی پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ثابت ہی نہیں ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بجا اور فرمایا۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ نبوت کو جاری تو مانتے ہیں، لیکن ان کی جماعت میں وہ لوگ جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد، اس کو تو یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ آیت صرف مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر ہی منطبق ہوتی ہے؟ اگر صرف اس کے اوپر منطبق ہوتی ہے، اگر وہی صرف اس کا مصداق ہے، تو پھر یہ اجرائے نبوت والا معاملہ تو آپ کا ٹھپ ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عثمان بھائی آ گئے ہیں، عثمان علی رضوی۔ عثمان موجود ہو آپ؟ ضیاء رسول؟ جی السلام علیکم سر جی، میں ادھر ہی ہوں، میرے نا گیسٹ آئے ہوئے ہیں، میں ویسے سن رہا ہوں کیونکہ ہم اچھا سارے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، سارے سن رہے ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں کریں، گفتگو کریں، راجپوت گفتگو کریں۔ جی استاد محترم، اچھا یہ نیچے ایک بھائی لکھ رہے ہیں، یہ پوائنٹ میرے بھی ذہن میں آیا تھا کہ استاد محترم یہ باقی شہادت تو ان کو کیسے ملے گی، کیونکہ مرزا قادیانی نے تو وہ جہاد کو منسوخ کر دیا ہے، تو شہادت پھر وہ قرآن کی آیت کے خلاف یہ بات چلی جاتی ہے۔ جھوٹ اور مکر فریب یہ تو قادیانیت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کی تحریف، جیسے سید ہولی اسپرٹ صاحب فرما رہے تھے، آپ نے کچھ حوالے دیے، قرآن کریم کی تحریف انہوں نے معنوی بھی کی ہے، اور کئی جگہ پہ انہوں نے لفظی تعریف بھی جو ہے وہ اس کی کوشش کی ہے، جیسے روحانی خزائن کے اندر ہی ایک حوالہ ہے، وہ میرے پاس اس کا سکین بھی شاید پڑا ہوگا، میں ایک سیکنڈ۔ تو شاہ صاحب ایک اور چیز دیکھیے گا، اسمہ احمد والی جو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ تفسیر صغیر میں اس کا ترجمہ اور اس کے ذیل میں پھر جو انہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے وہ کیا کی ہوئی ہے؟ کس کی؟ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ نبی آئیں گے بعد میں جن کا نام احمد ہوگا۔ ہاں، اسمہ احمد۔ ہاں جی، اسمہ احمد والی آیت، اچھا ایک منٹ، وہ آیت ذرا تلاش کر لوں تو پھر میں بتاتا ہوں۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیے گا کہ یہ انہوں نے کیا کی ہوئی ہے۔ سورہ صف وہ ہے سورہ الصف آیت نمبر 6 ہے، اور سورہ صف 61 نمبر سورت ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اچھا استاد محترم، آپ آگے بات کر رہے تھے کہ یہ پورا ایک گراؤنڈ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا تھا۔ انجینئر مرزا محمد علی گولمی کی ایک ویڈیو کا ہم نے وہ محاسبہ کیا تھا یوٹیوب کے اوپر، یا آپ کے چینل کے اوپر ہی اسٹریم کی تھی باقاعدہ ہم نے، تو جس میں قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح والی ویڈیو کا،
تو اس میں اس نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سب قادیانیوں کی حمایت میں ہی کی ہیں، کہ ان کی مسجد کہتا ہے جی ان کی مسجدوں میں جاؤ، ان سے ملو، ان کے پیچھے نماز پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا، یہ ساری چیزیں اس نے بولی تھی۔ اور پھر اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ یا بیان ہے کہ ان کا ترجمہ قرآن کا بالکل ٹھیک ہے، تو یہ پھر جب اس کے اسٹوڈنٹ جو اس کے فالوور جب سنیں گے تو ان کے دل میں پھر قادیانیوں کے لیے نرم رویہ ہی پیدا ہوگا، اور پھر جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے تو پھر اس اچھا طرح یہ کے دیکھیں ذرا، ڈنڈی ڈنڈی مار لی، پھڑ لیا نا۔ ہیلو جی، اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے جو انجیل برناباس میں لکھی ہوئی ہے۔ عیسائی اس کو جھوٹی انجیل قرار دیتے ہیں، مگر یہ پوپ کی لائبریری میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے کہ مروجہ انجیل میں فارکلیت کی خبر دی گئی ہے جس کے معنی احمد ہی کے بنتے ہیں۔ پس اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ اور آپ کی ایک بروز کی جس کا ذکر اگلی صورتوں میں بالواسطہ خبر دی گئی، یعنی مرزا قادیانی کے بارے یہ کہا گیا۔ یہ اب بروز انہوں آئے، نے دکھا لیا ہے نا۔ ہاں اب آیت کا جو ترجمہ کیا وہ ذرا سنیے، ترجمے کے ساتھ کیا ڈنڈی ماری ہے۔ اسمہ احمد، اور جس کا نام احمد ہوگا۔ اچھا جی، فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب وہ رسول دلائل لے کر آئے گا، یہاں پہ مضارع کر دیا ترجمہ کہ وہ دلائل لے کے آئے گا، یعنی مرزا قادیانی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا کھلا فریب ہے۔ اس کا ترجمہ ماضی کا کر دیے۔ ہیلو مطلب قابل غور بات یہ ہے نا کہ اگر تو ایک لمحے کے لیے قادیانی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے جو ترجمہ کیا ہے نا اس میں یہاں پہ مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو پھر یہ تم لوگوں نے آگے جا کے ترجمے میں مستقبل کا صیغہ کیوں استعمال کر دیا؟ نہیں، پہلے مضارع کیا، آگے ماضی کر دیے۔ اب یہ دیکھنا ذرا، یہاں تو دونوں جگہ تم ماضی کرتے یا دونوں جگہ مضارع کرتے ہیں۔ دیکھ لو دجل فریب، ہوئے ہوئے خدا دی قسم۔ یعنی وہ جب آئے گا وہ احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مضارع ہے۔ تو پھر یہ کہو نا کہ بھائی تو وہ کہیں گے کہ یہ کھلا کھلا فریب ہے۔ ہاں، پھر وہ آگے بھی پھر مضارع کا ہی ترجمہ کرو کہ جب وہ آئے گا۔ اگر تم نے مرزا قادیانی کو فٹ کرنا ہے تو پھر ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ مضارع کے ساتھ اس کو کرو۔ تو اگر تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے تو پھر ماضی کا ترجمہ بنتا ہے۔ اب یہ اصل میں تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، عام عوام کی سمجھ میں آنی کو نہیں ہے۔ اسکندر مرزا، عام بندیاں دی نہیں سمجھ آنی۔ جی شاہ صاحب، وہ اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ میں تو جو ہے نا جٹکی بات کروں گا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا یار تم لوگوں نے کدھر سے ترجمہ نکالا ہے، یہ پہلے ہمیں بتاؤ نا۔ شاہ صاحب یہاں ہولی اسپرٹ صاحب جو ہیں وہ تو گرامیٹیکلی اور صرف اور نحو کے حوالے سے تم پہ گرفت کرتے ہیں نا، ایک بالکل لے مین کے سطح پہ آ کے میں تمہارے سے بات کرتا ہوں، یہ حروف مقطعات کا ترجمہ یہ کدھر سے نکالا ہے، یہ پہلے سانو دسو نا۔ اور پھر یہی نہیں صرف الف لام میم نا، قرآن پاک میں جتنے حروف مقطعات آئے ہیں سبھی کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور مزہ کا ہے اس بات یہ کہ بریکٹ بھی نہیں لگائی ہوئی، یعنی ڈائریکٹ ترجمہ۔
चलो सिरात अल्लाज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने नाम किया है और जिन पर ना ना तो बाद में तेरा गज़ब नाजल हुआ है और ना वो बाद में गुमराह हो गए हैं। ये अपनियां चीज़ां लुकमा डाले वाह उल्लू दे पट्ठे बंदा की करे, लाए लेतर ते पाए ਤੁਹਾਨੂੰ लम्मे। शाह साहब ये जो ब्रैकेट में लगाया है ना, जो बाद में गुमराह हो गए हैं, ये असल में इन लोगों ने हमारा जिक्र किया है ना अपने तर्जुमे ओही में, ओही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी रसूल ना मान के जो लोग गुमराह हो गए हैं उनके रास्ते पे हमें ना चलाना। हाँ, ये इनडायरेक्टली ये ब्रैकेट के अंदर बाद में जो इन्होंने वो किया है ब्रैकेट क्या, वो नीचे तफसीर के अंदर भी बताया है उसने, अच्छा तफसीर में भी जिक्र है ना, तफसीर में वाज़े तौर पे वो कह रहा है। बड़ी गल है यार, बड़ी गल है। जस्टिस साहब तुसां चंगा नहीं जे कीता। अब इसके हवाले से जब हम देखते हैं कि जस्टिस साहब ने उसमें आइन का जो आर्टिकल है 20 उसका हवाला दिया हुआ है, जो ये कहते हैं कि जो है ना मजहबी तौर पे दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। अब ये तफसीर सगीर जब कादियानी हो तुम बांटोगे, और जस्टिस साहब आपसे भी ये सवाल है, और उसमें इस किस्म के ब्लंडर आएंगे जिससे मुसलमान ना सिर्फ गुमराह होंगे बल्कि उनकी दिल आजारी जो है वो भी होगी, तो फिर मुसलमानों का जो आर्टिकल 20 है वो फिर किधर गया, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22? अच्छा यार है मैनू आर्टिकल 20 ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਬਲਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਹਾਓ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ कौम नो जे पता ही को नहीं, क्योंकि कानून नहीं पता लोगों को। मैं ना इसको आसान फहम कर देता हूँ। हाँ। जस्टिस साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो आइन है ना वो इस चीज़ को गारंटी करता है कि कोई भी शख्स उसकी मजहबी दिल आजारी का मौजब कोई दूसरा शख्स पाकिस्तान में नहीं बनेगा। ठीक है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये मुसलमानों से कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों कादियानियों को तफसीर सगीर छापने से ना रोको, उनके ऊपर पाबंदियां ना लगाओ। एक तरफ तो ये बात, लेकिन वही आइन जो है वो मुसलमानों के हकूक को भी तो गारंटी करता है ना। मुसलमानों की क्या दिल आजारी नहीं होती? कौमी असम्बली में भी 74 की असम्बली में जब कार्रवाई हुई थी तो उस जगह में भी जब ये सारी बात हुई थी तो वहाँ पे भी यही फिर बात हुई थी ना, ये मिर्ज़ा नासिर के साथ अटॉर्नी जनरल साहब की, कि यार अगर तो तुम लोग ठीक है अपनी मज़हब की तरवीज करते हो, हमें उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तो तुम्हारे मजहबी अकायद की तरवीज की वजह से जो दूसरे मुसलमान हैं उनकी दिल आजारी हो तो उसके बारे में तुम्हारा क्या मौकफ है? क्योंकि आइन या कानून जो है उसने पार्टी तो नहीं ना बनना किसी एक फरीक के हक में। हाँ, यहाँ तो ये है कि तुम इस तफसीर सगीर के ऊपर जो है ये वाज़ेह तौर पे लिखो कि भाई ये हमारी कादियानी जमात की तरफ से तफसीर की गई है, तर्जमा किया गया है, कादियानी जमात इसको छाप रही है, और हमारा जो बुनियादी इख्तलाफ है मुसलमानों से वो ये है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को तुम लोग नहीं मानते, ताकि मुसलमानों को पता चले कि ये असल में जो है वो कादियानी तफसीर है, फिर भी कोई बात बनती है। या फिर इससे बड़ी चले मैं बात करता हूँ, अगर तुमने तफसीर करनी है तो यार तुम पहले अपनी जो मजहबी किताब है तज़किरा उसकी पहले तफसीर करो ना, उसका तर्जुमा करो।
फिर ये कहते हैं कि जनाब हमने कुरान पाक की इतनी खिदमत की है कि दुनिया के वो जनाब 195 मुल्कों की पता नहीं कितने 100 जुबानों में कुरान पाक का तर्जुमा हमने छाप के शाया कर दिया है। और यार मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की अपने हाथ की लिखी हुई किताबें जिसको तुम सब कुछ अपना मानते हो, उसकी किताबों का तर्जुमा क्यों नहीं छापते? मां सिवाय उसकी चंद एक किताबों के किसी किताब का इन लोगों ने तर्जुमा नहीं किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम, सारे खामोश बैठे हो जी, खैर हो गई। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤਫਸੀਰੇ ਸਗੀਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। अच्छा 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 अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੂੰਕਿ ਬਰਾੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, होनी चाहिए। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜਬੜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਸਰੇ ਦਸਤ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਵਾਲੇ ਲੱਭ ਜਾਣ। हाँ जी मलक कैसर साहब की हाल चाल ने? मलक इमरान साहब ही आए ने जी, वाह जी वाह। कैसर भाई की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक बावां तुहाडियां। तुसीं किधरों आ रहे हो इस टाइम? मैं हाँ जी मैं पहले भी थोड़ी लाइव ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। अच्छा जी, मेरे असल च मेहमान आए हुए ने तो मैं उन्हां नाल बिजी है सी ते मैं वैसे एक बारी वेखिया सी तुहानूं। सुनिया सी जी अज फिर मिर्जे कादियानी दा वो मरीद जिहड़ा सी ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲਾ। फजल नहीं फजलुर रहमान मरीद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ। हाँ मैं सुनिया। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी सुनाओ ना। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ कहता जी लाहौर के अयाम में सैर के लिए तशरीफ़ ले जाने से कबल मुझ गुलाम को याद फरमाते और जब मैं इतला करता तशरीफ़ लाते थे। यही हुजूर का मामूल था और मैं भी नहायत पाबंदी और तअहुद से इन औकात का इंतज़ाम और इंतज़ार किया करता था। रथ के पीछे मेरे वास्ते हुजूर ने हुक्म देकर एक सीट बनवा दी थी, तो फुटन की सवारी में पीछे की तरफ का पायदान मेरा मखसूस मुकाम था, जहां इब्तदान मैं पीछे को मुंह करके उल्टा खड़ा हुआ करता था। ऐसा कि मेरी पीठ हजरत और बेगमात की तरफ हुआ करती थी। पीठ मेरी हजरत और बेगमात की तरफ हुआ करती थी।
इस ख्याल से कि बेगमात को तकलीफ ना हो। बेगमात को तकलीफ ना हो, क्योंकि अमूमन सैयदातुन्निसा उल्लू दा पट्ठा और कोई और ख़वातीन मुबारका भी हज़रत के साथ कोचवान की तरफ वाली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा होती तो उनकी तकलीफ़ या पर्दा का ख्याल मेरे उल्टा खड़े होने का मुजब और मुहर्रक हुआ करता था। यानी नुसरत जहां दे पिछली साइड ते नुसरत जहां आले पासे ए कंड करके ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤੂੰ ਕੱਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਜਨ ਆਈ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵਾਕਿਫ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇੰਜ ਦੀ ਏ। कहता मगर एक रोज़ कहीं हजूर का ख्याल मेरी इस हरकत की तरफ मबजूल हो गया तो हुक्म दिया कि मियाँ अब्दुर्रहमान यूं तकल्लुफ़ करके उल्टा खड़ा होने की ज़रूरत नहीं, सफ़रों में ना इतना सख्त पर्दा करने का हुक्म है और ना ही इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत। ऐ हुण सुन लो मिर्ज़े कादियानी दी गल, कहता सफ़रों में ना इतना सख्ता पर्दा करने का हुक्म है और ना ही इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत। तो होर अन्नी दिया बच्चिया पर्दा घर चो करना हुंदा जे सफ़र च नहीं करना हुंदा? पर्दा हुंदा ही सफ़र च जो तुसीं घरों बाहर जाओ। ए वखरी मंतक मिर्जे ने घड़ लई, सफ़र दे विच कहंदा एडा सख्त पर्दा नहीं हुंदा, पर होया जो बगैरत ਉਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ। नुसरत जहां ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ स्टेशन ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। सुन लो गल। और जिस तरह औरतों को पर्दा का हुक्म है इसी तरह मर्दों को भी गज़े बसर करके पर्दा की तकीद है। आप बेतकल्लफ सीधे खड़े हुआ करें। कहना नुसरत जहां मुंह कर खड़ा होया कर। लो जी हुण उस तो बाद फिर ए फजलुर रहमान दा मूँह ते नुसरत जहां दा मूँह नाल नाल हुंदे सी। ऐ मलक कैसर साहब जरा ध्यान करो, रथ दे विच पिछले पासे नुसरत जहां बैठी आ ते नुसरत जहां दे अगे पायदान ते खड़ोता मौलवी फजलुर रहमान ते मूँह ओहदा नुसरत जहां बेगम वाला। और कोचवान का भी वो दूए पासे मूँह आ, मिर्जे का भी उधर मूँह आ, ते इधर मौलवी फजलुर रहमान ते नुसरत जहां ते मूँह नाल मूँह जुड़े उन्हां दे। किन्ना कु फर्क हुंदा जी, पायदान ते एक बंदा खड़ा होए, बल्कि सीट बनवा दी सी उन्हें तो उत्थे। अच्छा ते ओ उधरों जनाबे अली नुसरत जहां बेगम पिछली सीट ते बैठी हुंदी सी। हुण दसो की नज़ारा होएगा? की पढ़ना पिया कहंदा केड़ी किताब चों पढ़ना पिया? मैं किताब क्यों दसा था। कहता चुनाचे इसके बाद फिर मैं हमेशा सीधा खड़ा हुआ करता था बरआयत पर्दा। बाज बेगमात की गोदी में बच्चे हुआ करते थे, गाड़ी से उतरते वक्त इनके उठाने में भी बहुत हद तक तकल्लुफ़ किया करता था, मगर इससे भी हुजूर ने रोक दिया और मैं बच्चों को मोहतात तरीक से बेगमात की गोदियों में से बसहूलत ले दे लिया करता था। सुनो जी कैसर साहब, उस्ताद मोहतरम ऐ ना सीरतुल मादी दे ततीमा च लिखिया होया। अच्छा ततीमा, ठीक। हाँ जी। ये गल जिया भाई, ये चाचा है बड़ा हरामी वैसे। हाँ जी। ऐ मलक कैसर साहब सीन बड़े खतरनाक ने। मलक इमरान साहब सीन बड़े खतरनाक। जी जी आओ बता दो ते मैं थोड़ी थोड़ी अपनी रोशनी जनाब ली सटे सा ना। हाँ तो रोशनी सटाओ ये ते जेड़ा रथ दे पिछली साइड ते जनाब बेगम बैठी है ते ओदे नाल खलोता है हेठली साइड ते मिर्जे दा मुरीद ते मुंह बेगम वाले पासे।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਓ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ। ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵਕੀ ਭਾਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੱਕੀ ਪਾੜ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਛੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆ ਬਾਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ। ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਸੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੇ। ਮੌਲਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਣ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੇ। ਮਲਿਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ और खोती दिया पुत्रा मेरा शीशा बनू है। चल अग्गा गवान ठीक है दफा पर। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬਵੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਉਂਡ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हाँ जी जी भाई अगे। अच्छा जी सारी टुर गए। आगे सुनो जी, आगे कहता एक रोज करना खुदा का ऐसा हुआ कि इधर हुजूर सैर को तशरीफ ले जाते वक्त, इधर हुजूर को सैर को तशरीफ ले जाने का वक्त था। गाड़ी आ चुकी थी और मैं इतला कर चुका था। इधर हजरत उम्मुल मुनाफिकीन की तरफ से एक खादमा ने पैगाम दिया। हुण मिर्जा तैयार है जी सैर नूं जाण वास्ते, गड्डी आई खड़ी आ ते नुसरत जहां बेगम का पैगाम आ गया मौलवी फजलुर रहमान नूं कि भाई जी से कहो कि हमें देसी पान ला दें। मैंने हजरत की तशरीफ आवरी के ख्याल से उज़र किया तो दोबारा फिर 12 तकीदी हुक्म पहुंचा। कहता मैं मना करता भी मिर्जे ने जाना सैर ते मैं उहदे नाल जाना, तो कहते दोबारा 3 वारी हुक्म आया कि नहीं तू नहीं जाना। तू कित्थे जाना? पान लैके आना, तू पान लैन जाना देसी। हुक्म पहुंचा कि नहीं आप ही लाओ और जल्दी आओ। मलक इमरान साहब ये नहीं के सबर नहीं होन दिया, कित्थे लगे फिरदे हो? कह रही है 100 बार कह रहा है और दोबारा फिर 100 बार ताकीदी हुक्म पहुंचा कि नहीं आप ही लाओ और जल्दी आओ। मजबूर होकर सरतोड़ भागा। लोहारी दरवाजा के बाहर अनारकली में एक दुकान पर अच्छे देसी पान मिला करते थे। दिता आर्डर नुसरत जान वो तो मैं यही जनाबली पूछने आना। हाँ जी। अच्छा आप और ये नशे फरमानिया सन यानी कि पान लाई। हाँ जी मैं आख्या ये भी यानी कि पानी खानिया है ना। हाँ हाँ बिल्कुल पान खांदियां। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा जी कहता जी मजबूर होकर सरतोड़ बागा लोहारी दरवाजा